ویسے ہی اے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے، میری روح خدا کی زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ میں کب جا کر خدا کے حضور حاضر ہوں گا؟ میرے آنسو دن رات میری خوراک ہیں، جس حال کے وہ مجھ سے برابر کہتے ہیں تیرا خدا کہاں ہے۔ ان باتوں کو یاد کر کے میرا دل بھر آتا ہے کہ میں کس طرح بھیڑ یعنی عید منانے والی جماعت کے ہمراہ خوشی اور حمد کرتا ہوا ان کو خدا کے گھر میں لے جاتا تھا۔ اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے؟ تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ خدا سے امید رکھ، کیونکہ اس کے نجات بخش دیدار کی خاطر میں پھر اس کی ستائش کروں گا۔ اے میرے خدا، میری جان میرے اندر گری جاتی ہے، اس لیے کہ میں تجھے یردن کی سرزمین سے اور ہرمون اور کوہ مسفار پر سے یاد کرتا ہوں۔ تیرے آبشاروں کی آواز سے گہراؤ گہراؤ کو پکارتا ہے، تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئیں۔ تو ابھی دن کو خداوند اپنی شفقت دکھائے گا اور رات کو میں اس کا گیت گاؤں گا، بلکہ اپنے حیات کے خدا سے دعا کروں گا۔ میں خدا سے جو میری چٹان ہے کہوں گا تو مجھے کیوں بھول گیا؟ میں دشمن کے ظلم کے سبب سے کیوں ماتم کرتا پھرتا ہوں؟ میرے مخالفوں کی ملامت گویا میری ہڈیوں میں تلوار ہے، کیونکہ وہ مجھ سے برابر کہتے ہیں تیرا خدا کہاں ہے۔ اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے؟ تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ خداوند سے امید رکھ، کیونکہ وہ میرے چہرے کی رونق اور میرا خدا ہے۔ میں پھر اس کی ستائش کروں گا۔ جلال باپ اور بیٹے اور قدس کا ہو، جیسے ابتدا میں تھا اب بھی ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، آمین۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا قدوس، ہمارے زندہ اصلی اور ابدی خدا، ہم تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، کیونکہ تو نے اپنے بیٹے یسوع مسیح میں فضل کیا اور ہمارے لیے ممکن کیا کہ ہم آج تیرے اس مقدس دن میں اکٹھے ہو سکیں اور تیری عبادت کر سکیں۔ خداوند اس ساری عبادت میں ہم تیری رہنمائی مانگتے ہیں، تو اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے چھو اور برکت دے، ہماری رہنمائی اور حفاظت کر، ہمارے ایمان کو مضبوط کر۔ تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کا نام ہماری زندگی سے عزت اور جلال پائے۔ خداوند آج جتنے لوگ یہاں پر عبادت میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، جتنے آن لائن ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، سبھی کے ایمان کو مضبوط کر۔ آج جتنے لوگ کسی دکھ تکلیف پریشانی یا بیماری کے ساتھ اس عبادت میں شامل ہیں، تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے تسلی، اطمینان اور معجزات پائیں۔ خداوند تو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہو اور حفاظت کر، ہمارے ایمان کو مضبوط کر، ہمارے دھیان اور خیال تیری طرف لگیں۔ خداوند آج جہاں بھی لوگ عبادت کے لیے جمع ہیں یا جمع ہوں گے، خداوند ان کی حفاظت کر، انہیں شر پسند عناصر سے اور دہشت گردی سے محفوظ رکھ۔ تیرا ہاتھ تیرے لوگوں کا بڑا رہے، یسوع کے نام میں لوگ برکت پائیں۔ اور خداوند دعا کرتے ہیں کوائر کی تو پاک روح کے وسیلے سے رہنمائی کر، تاکہ کوائر کے ساتھ مل کر جب ہم تیری حمد و ثنا کریں تو اس حمد و ثنا کے وسیلے سے یسوع کے نام کو جلال ملے۔ مسیح یسوع کے نام میں مانگ لیتے ہیں، آمین۔ He
से रोशन हुई जीवन की सदा बिजली से रोशन हुई भटके हुए बंदे को मुक्ति तुझी से मिली भटके हुए बंदे को मुक्ति तुझी से मिली वंदना करते हैं हम वंदना करते हैं आए हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, कव्वारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर 22 गाएंगे। याद यहोवा की सब करेंगे, खंडे सारी दुनिया दे। ज़बूर नंबर 22 चौथा हिस्सा। ज़बूर नंबर 22 चौथा हिस्सा। याद यहोवा की सब करेंगे, खंडे सारी दुनिया दे।
دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور اس دعا میں پادری افراہیم قمر صاحب ہماری رہنمائی کریں گے. ہم خداوند کا شکر کریں گے. خداوند نے ہمیں یہ موقع دیا کہ آج ہم اکٹھے ہو سکیں, اس کی عبادت کر سکیں. اس کے اس مقدس دن کے لیے خداوند کا شکر کریں گے. اور اسی طرح سے ہم اس جگہ کے لیے خداوند کا شکر کریں گے کہ خداوند نے یہ جگہ ہمیں مہیا کی ہے تاکہ ہم یہاں پر اکٹھے ہو کر عبادت کر سکیں. ایف سی کالج کے لیے خداوند کی برکت مانگیں گے. دعا کریں گے خداوند اس ادارے کو برکت دے, اس ادارے کو چلانے والے انتظامی افسران, فیکلٹی اور اسٹاف کو برکت دے تاکہ ان کے وسیلے سے یہ ادارہ ترقی کرے. اس کے ساتھ ہی ہم پوری دنیا میں امن و سلامتی کے لیے دعا کریں گے. اپنے ملک پاکستان میں امن و سلامتی کے لیے, سیاسی استحکام کے لیے, معاشی استحکام کے لیے دعا کریں گے. اور پوری دنیا میں پاکستان میں مسیحوں کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند مسیحوں کو ایمان میں مضبوط کرے, آزمائشوں پر غالب آنے کے لیے تیار کرے. آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں. دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں گے. دعا کریں گے خداوند خدا بہبر کے خالق اور مالک, زندہ ابدی اور جلالی باپ, شکر گزار ہیں آج کے اس دن اور اس موقع کے لیے جو کہ تو نے ہم سبوں کی زندگی میں یہ بخش دیا. ہم سبھی تیرے اس پاک دن کو ذہن میں رکھتے ہوئے تیرے حضور میں سرمسجود ہیں. اور اے خداوند خدا, ہمارا ایمان ہے کہ تو بھی اپنے وعدے کے مطابق ہمارے درمیان موجود ہے. سو اس وقت تیری موجودگی کو, تیری حضوری کو محسوس کرتے ہوئے تیرے حضور میں ملتجی ہیں کہ تمام مناجات اور گزارشات تیرے حضور میں رکھی گئی ہیں. دعا گو ہیں کہ تو نے اپنے حضور میں قبول فرما. اور اے خداوند خدا تیرے کی منت کرتے ہیں خاص طور پر اس ادارے کے لیے کہ تو اے خداوند خدا اپنے ادارے کے وسیلے سے تو اپنے نام کو عزت اور جلال بخشنا, اور تمام فیکلٹی کے تمام سٹاف ممبران کے لیے دعا گو ہے کہ تو نے بھی اپنے جلال کی خاطر کثرت سے استعمال کرنا. اور اے خداوند خدا تیرے کی منت کرتے ہیں تو فیکلٹی کے تمام اخراجات کو, ضروریات کو اپنے الہی خزانے سے پورا فرما, تاکہ اے خداوند خدا یہ فیکلٹی بہتر طور پر تیرے لوگوں کی ترقی کے لیے کام کر سکے. دعا گو ہے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے کہ تو اے خداوند خدا نوجوان نسل میں روحانی بیداری کی روح بخش دے تاکہ روز بروز تجھ میں بڑھے, پھلے پھولیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کا باعث ٹھہرے. دعا گو ہے کہ ملک میں امن و استحکام ہو. اور اے خداوند خدا تیرے کی منت کرتے ہیں کہ تمام اعلیٰ حکمرانوں کے ساتھ ہونا, انہیں عقل, ذہن اور فہم بخشنا تاکہ ملک کا انتظام بہتر طور پر چلا سکیں اور تیرے لوگوں کی بہتری کے لیے اے خداوند خدا بہتر قوانین بنا سکیں. دعا گو ہے کہ تو اپنے لوگوں کو ہمت, دلیری اور قوت بخشنا تاکہ اے خداوند خدا اس ملک میں رہتے ہوئے تیری خاطر ہر اذیت کو اے خداوند خدا بڑی جرأت کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے تجھ پر کامل ایمان اور پختہ یقین رکھتے ہوئے تجھ میں قائم رہتے ہوئے اے خداوند خدا اپنی زندگیاں تیرے ساتھ بسر کریں اور تیرے نام کو جلال دینے کا باعث ٹھہریں. دعا گو ہے کہ آج جہاں جہاں بھی تیرے لوگ تیری عبادت کے لیے تیرے گھروں میں جمع ہیں تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہونا, اپنے لوگوں کو اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھنا. اور پھر دعا گو ہے کہ اپنے خادمان دین کے ساتھ ہونا اور کثرت سے خداوند خدا اپنے خادمان دین کو اپنی کلیسیوں میں استعمال کرنا, اپنا تپایا ہوا کلام بخش دینا جو کہ تیرے لوگوں کے لیے اے خداوند خدا رہنمائی کا باعث ہو. دعا گو ہے کہ عبادت کے باقی حصہ میں تمہارے ساتھ ہونا, ہمارا ہادی ہونا مانگ لیتے ہیں تیرا پیارا مقدس اور جلالی نام لے کر, آمین. خداوند کی تعریف میں آگے بڑھتے ہوئے ہم زبور 91 گائیں گے. زبور نمبر 91 دوسرا حصہ. یا رب تو میری پناہ ہے سو تو ہے میری جان. زبور نمبر 91 دوسرا حصہ.
दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। हम ये शिफाया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है, हम खुदा की हजूरी में हैं, और खुदावंद की हजूरी में जब ईमानदार इकट्ठे मिलकर मुतफिक होते हैं, शिफा के लिए दुआ मांगते हैं, तो मोजज़ात होते हैं। आए हम सभी अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उन्हें खुदावंद की हजूरी में ले आएँ और उनके लिए शिफा मांगें। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा असली और अपनी खुदा, हम तेरे बेटे यीशु के लिए शुक्र करते हैं, क्योंकि तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में कुदरत और फतह है। यीशु के खून की कुदरत के लिए शुक्र करते हैं, जिसके वसीले से शिफा मिलती है। खुदावंद तेरी हजूरी में हैं और ये इकरार करते हैं कि हम कमज़ोर हैं, तो अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के खून से हमें धोता है, पाक करता है, शिफा देता है, रूहानी शिफा देता है, बीमारियों से शिफा देता है। इसलिए खुदा हम बड़े ईमान के साथ तुझसे मांगते हैं। जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, खुदा हम अपने लिए यीशु के नाम से मोजज़ात मांगते हैं। खुदा तू हम में से हर एक को छू और मोजज़ा कर। हर एक बीमारी, कमजोरी, जिस्मानी दर्द यीशु के नाम से जाती है। तेरे मोजज़े खुदावंद मांगते हैं। खास तौर पर खुदावंद आंखों की जो वबाई अमराज है, जो कि इस वक्त हमारे मुल्क में तेजी के साथ फैल रही है, यीशु के नाम से उसे खत्म करते हैं। खुदावंद हम अपने लिए दुआ करते हैं, हम में से हर एक को छू, हमारी आंखों को छू, ताकि किसी के जिस्म में, किसी की आंख में इस वक्त अगर तकलीफ है तो यीशु के नाम से जाती रहे। और खुदावंद हम भी इस वबाई मर्ज से महफूज रहें। तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत को अपनी आंखों पर मांगते हैं, तेरी आग मांग लेते हैं, ताकि तेरी आग की कुदरत से हमारी आंखें धुल जाएं, ताकि इस वबाई मर्ज से हम महफूज रहें। खुदावंद हम में से हर एक के साथ हो। खास तौर पर खुदावंद हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं, उन्हें तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरी हुजूरी में लाते और शिफा मांगते हैं। खास तौर पर खुदावंद हम दुआ करते हैं बहन फौजिया के लिए, मिसेस जेडी आर्थर, मिसेस नजीर ज़ियाई, मिसेस सरवर, मिसेस लवीज़ा, मिसेस खुर्शीद, मिसेस वीना क्रिस्टोफर, बहन रुखसाना, इसी तरह से मिसेस जीनत के लिए, अब्दियल के लिए, अयान के लिए, मिसेस प्रोमिला मैसी के लिए, बहन रजिया जेम्स के लिए और उनके बच्चों के लिए, बहन शाहीन के लिए, एहतशाम के लिए, गोहर के लिए। इस तरह से खुदा हम दुआ करते हैं भाई अगस्तीन के लिए, भाई शहजाद, भाई नदीम जॉर्ज, भाई आसफ रशीद, भाई अर्नेस्ट पॉल और भाई क्रिस्टोफर यूसुफ के लिए दुआ करते हैं। खुदा हम सबको छोड़ शिफा दे। तेरे बेटे यीशु के नाम से सभी को शिफा मिले। नोएल के लिए यीशु के नाम से शिफा मांगते हैं। हर एक को छू खुदावंद, हर एक की बीमारी, तकलीफ, दर्द यीशु के नाम से जाता रहे। तेरे फजल के वसीले से मोजज़ात हों। खुदावंद हमारी कलीसिया में जो बे औलाद जोड़े हैं, यीशु के नाम से उनके लिए औलाद की बरकत मांगते हैं। एक एक को छू खुदावंद, तू सभी को जानता है। जो खुदावंद इस बरकत से दूर हैं, तो अपने बेटे यीशु के नाम से उन्हें ये बरकत दे, उन्हें ये मेरास दे जो तेरी तरफ से मिलती है। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब एक ज़रूरी ऐलानात हैं, वो आपके खुशगुजार करता हूँ। एक पुकार है, रुखसाना परवेज, दुख्तर परवेज मसीह, उम्र 32 साल, हालत कमवारी, FC कॉलेज लाहौर की रहने वाली की शादी इमरान रंधावा वल पतरस रंधावा, उम्र 32 साल, हालत कमवारा, मोमनपुरा लाहौर के रहने वाले के साथ 1 अक्टूबर 2023 को होना करार पाई है। और ये शादी की तीसरी पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता, तो अभी बताना जरूरी है। इसके बाद हमेशा के लिए खामोश रहना होगा। चंद माह पहले हमें इसी हॉल से एक पर्स मिला, छोटा वॉलेट है, एक लेडीज वॉलेट है वो, जिसमें एक शनाख्ती कार्ड भी है, मिसेस रुबीना एजाज, जोजा एजाज आमिर। इसके अलावा उनकी बेटी का भी ID कार्ड है और कुछ और पेपर सर्टिफिकेट्स हैं। अगर कोई इनको जानता हो, एजाज आमिर साहब को या बहन रुबीना एजाज को, तो ज़रूर उन्हें आगाह करें या हमें बताएं, ताकि हम इनको पहुंचा सकें। इस वक्त हम क्वायर से गीत सुनेंगे और ज़रूर इस गीत में क्वायर के साथ शामिल हो, ताकि हम इस समदो सना में सभी मिलकर हिस्सा ले सकें। आज का गीत ये हमने 2-3 संडे पहले भी गाया था।
تیرے کلامیہ دلا بہت مشہور ہے، بہت خوبصورت لکھا ہوا ہے، بہت خوبصورت کمپوزیشن ہے. تو ہم لوگ کی آپ کی یہی ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں کے پاس یہ لیرکس ہے اور جن لوگوں کو یہ گیت آتا ہے، آپ ضرور ہمارے ساتھ ہم جو سلام شریف دعا کریں. اس سے ہمیں بھی تحریک ملتی ہے کہ ہم بھی گیتوں کو اس طریقے سے گا سکیں. شکریہ.
दुआया रूह में गीत गाएंगे। गीत नंबर 354, रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है। गीत नंबर 354, गीत नंबर 354, और इस गीत के इख्तिताम पर हम खड़े रहेंगे और कलाम मुकद्दस की तिलावत भी सुनेंगे। गीत नंबर 354, 354, रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है। बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। मिलती बरखा बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। तमन्ना यीशु मसीहा, चुनेगा उसको बदले, अपने ईमान से उसके लहू से, अपने ईमान से उसके लहू से, पापों से धुलने का बदले। मिलती बरखा बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। तेरे गुनाह चाहे होके बचे, बर्फ की मारिश धोएगा वो, पानी आलू से देगा जन्म, पानी आलू से देगा जन्म, जन्म से जिंदगी दे देगा वो। मिलती बरखा बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। उसका नजर कर ले शिफा, अपने मसीहा से ले शिफा, उसकी सलीब से ले शिफा, उसकी सलीब से ले शिफा, उसके लहू से ले शिफा। मिलती बरखा बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। थोड़े दिखाए तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा, उजला गया वो तेरे लिए, उजला गया वो तेरे लिए, तेरी शिफा बोले संसार। मिलती बरखा बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे मुकद्दस पतरस का पहला खत, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक। Peter's first epistle, chapter 1 verses 2, chapter 2 verses 1 to 5। पतरस का पहला खत, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक।
کلام مقدس کی تلاوت کرنے میں ہماری رہنمائی مسز سارہ ہارون کریں گے۔ ان کے پاک کلام میں لکھا ہے، بس ہر طرح کی بدخواہی اور سارے فریب اور ریاکاری اور حسد اور ہر طرح کی بدگوئی کو دور کر کے نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو، تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ۔ اگر تم نے خداوند کے مہربان ہونے کا مزہ چکھا ہے، اس کے یعنی آدمیوں کے رد کیے ہوئے پر خدا کے چنے ہوئے اور قیمتی زندہ پتھر کے پاس آ کر تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو، تاکہ کاہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے نزدیک قبول ہوتی ہیں۔ آمین۔ تشریف رکھیں، آئے ہم دعا کریں۔ خدا قدوس ہمارے زندہ زیر ابدی خدا، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہمارا علم محدود ہے، ہماری عقل ناقص ہے، لیکن تیرا پاک روح ہمیں حکمت دیتا ہے اور مضبوط کرتا ہے، تو ہم تیرے کلام کو سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں اور اس سے برکت پاتے ہیں۔ خدا ہم اپنے آپ کو تیرے تابع کرتے ہیں، تیرے کلام کو سننے کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں۔ خدا پاک کرو تو میری مدد کر، تاکہ تیری آواز تیرے لوگوں تک پہنچ سکے اور لوگ برکت پائیں۔ خدا ہم میں سے ہر ایک کو چھو، ہمارے دلوں کو تیار کر، یسوع کے نام سے آمین۔ مقدس پطرس کے پہلے خط میں سے ہم سیکھنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور پہلا باب جو ہے اس کو ہم مکمل کر چکے ہیں، اور آج جب ہم دوسرے باب کا آغاز کر رہے ہیں تو اس دوسرے باب کے آغاز میں ہی ہمیں اس حوالے کا تعلق پہلے باب کی آخری آیات کے ساتھ ملتا ہے۔ یعنی جب دوسرے باب کا آغاز ہوتا ہے تو اس آغاز میں جو پہلے باب کی آخری آیات ہیں اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ربط ہے، اور اس سے آگے پطرس رسول نے بات کو ایمانداروں کے لیے بڑھایا۔ پہلے باب میں مقدس پطرس نے خدا کے چنے ہوئے لوگوں کے لیے، برگزیدہ کیے ہوئے لوگوں کے لیے، الگ کیے ہوئے لوگوں کے لیے خداوند کی برکتوں کا ذکر کیا ہے، جس کو ہم بار بار دہراتے رہے ہیں، جس میں سے میں نے کئی دفعہ گزشتہ اتواروں میں ذکر کیا کہ خدا نے ایماندار لوگوں کو لازوال میراث کا حصہ بنایا ہے، وارث ٹھہرایا ہے، کہ وہ میراث جو کوئی نہ ہم سے چھین سکتا ہے، نہ کبھی ہم سے لی جا سکتی ہے، خدا نے اس میراث کا ہمیں وارث ٹھہرایا ہے۔ پھر اس کے بعد پہلے باب میں ہی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایمانداروں کو اس لیے چنا گیا ہے کہ وہ مسیح کی خاطر، ایمان کی خاطر آزمائے جانے کا اعزاز حاصل کریں، اور ان کے لیے یہ آزمایا جانا خداوند یسوع مسیح کے ظہور کے وقت عزت اور تعریف کا باعث ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے پہلے باب میں خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے نجات کا وعدہ جو خدا نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے اس کی تکمیل کو دیکھا ہے، اور آخر میں پہلے باب کے آخر میں 19ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے ہماری مخلصی کا ذکر ہے، کہ اس کے بیش قیمت خون کے وسیلے سے ہماری مخلصی ہوئی ہے، ہماری گناہوں کی معافی سونے چاندی کے ہدیہ جات کے ذریعے سے نہیں بلکہ یسوع کے بیش قیمت خون سے ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد جب دوسرے باب کا آغاز کرتے ہیں تو ہمیں پطرس رسول اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب ایمانداروں نے
खुदा की बरकतों का मजा चखा है। दूसरे बाब की दूसरी आयत में है, तीसरी आयत में, कि अगर तुमने खुदा के मेहरबान होने का मजा चखा है, यानी वो ईमानदार जिन्होंने नई पैदाइश का तजुर्बा हासिल किया है, जो कि यीशु के बेशकीमत खून से धोए गए हैं, जिन्हें लाजवाल मेरास का वादा दिया गया है, जिन्हें खुदावंद के ज़हूर के वक्त खुदावंद की तरफ से तारीफ, जलाल और इज्जत का वादा दिया गया है, उनके लिए इस नई जिंदगी को किस तरह से शुरू करने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखने वालों की जिंदगी गुनहगार लोगों की जिंदगी से मुख्तलिफ है। यह नहीं हो सकता कि हम अपने आप को ईमानदार भी कहें, हम अपने आप को निजात याफ्ता भी कहें, और हमारी जिंदगी में गुनाह भी हो। ये दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। अगर हम ये क्लेम करते हैं कि हम यीशु के खून से धुल गए हैं, यीशु के बेशकीमत खून ने हमें धो दिया है, हम निजात याफ्ता हैं, हमें खुदावंद ने मिरास का वारिस ठहराया है, बादशाही का वारिस ठहराया है, तो यकीनी सूरत यह है कि हमारी जिंदगी में तब्दीली हो, एक नई जिंदगी हो। इसीलिए पतरस रसूल ने दूसरे बाब की जो पहली आयत है उसमें कुछ ऐसी खामियों का जिक्र किया है जो ईमानदार की जिंदगी का हिस्सा नहीं हो सकती। इसमें चंद बातें हैं। हर तरह की बदखाही, सारे फरेब, रियाकारी और हसद और हर तरह की बदगोई को दूर करके, ये 5 ऐसी खामियों का जिक्र है जो अक्सर इंसानों में पाई जाती है। हसद, बदगोई, फरेब, रियाकारी, बदखाही, दूसरों के बारे में बुरा चाहना, दूसरों को फरेब देना, रियाकारी करना, दूसरों से हसद करना या दूसरों की बदगोई करना, ये ऐसी खामियां हैं जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। हम ऐसा इन आदत का शिकार होते हैं कि हमें बाज़ औक़ात एहसास भी नहीं होता और हम ये सारा कुछ करते जाते हैं। लेकिन जो यीशु के खून से धुले हैं, जिन्होंने निजात का तजुर्बा किया है, उनकी जिंदगी इन खामियों से पाक होनी चाहिए, क्योंकि नई जिंदगी और गुनाहों की जिंदगी में फर्क है। पौलुस रसूल करंथियों के दूसरे खत के 5वें बाब में इस बात का जिक्र करते हैं कि ईमानदारों की जिंदगी कैसी होती है। करंथियों का दूसरा खत और उसके 5वें बाब की 16वीं और 17वीं आयत में लिखा है, बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से नहीं जानेंगे। आगे लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। इसका आगाज मैंने इस बात से, इस आयत से किया कि अब हम किसी को जिस्म की हैसियत से नहीं जानेंगे, यानी जो यीशु में नए हैं वो जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है। और इस आयत का हम बड़ी दफा जिक्र कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। पौलुस रसूल लिखते हैं, जिस्मानी बातों की फिक्र करते हैं, रूहानी बातों की फिक्र करते हैं, वो रूह में आगे बढ़ते हैं। लेकिन जिस्मानी जो होते हैं वो जिस्मानी ख्वाहिशों की फिक्र करते, सिर्फ जिस्म के लिए काम करते हैं। लेकिन जो यीशु में नए सिरे से पैदा हुए हैं, उनकी जिंदगी में ये खामियां नहीं होती, वो नई बातों में आगे बढ़ते हैं। और पतरस रसूल कहते हैं कि इन चीजों को उतार फेंको, ये जो चीजें हैं इनको दूर करके, ये जो खामियां हैं इनको दूर करके एक नई जिंदगी नौजाद बच्चों की तरह आगे बढ़ते जाओ। ऐसी खामियां जो हमारी जिंदगी में खुदावंद से दूरी लाती हैं, उन्हें पुरानी इंसानियत की तरह उतार डालने की जरूरत है। यहाँ पर पतरस रसूल ने इन खामियों को खत्म करने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया है, कहा है दूर करके। और इसी तरह से पौलुस रसूल जब इन बातों को अपने खतूत में लिखते हैं तो इफिसियों के खत के 4 बाब में कहा
तुम अपने अगले चाल चलन की पुरानी इंसानियत को उतार डालो, एक लिबास की तरह, एक ऐसे लिबास की तरह जो गंदा हो, एक ऐसे लिबास की तरह जो बुरा हो, जो दिखने में बुरा लगे, जो गंदा लगे, जिसमें सफाई ना हो। जिस तरह हम उस लिबास को उतारते एक नया पहनते हैं, इसी तरह हमारी गुनाहों की जिंदगी, हमारी नाराजगी का लिबास जो है, ईमानदार उसको उतार कर रास्तबाजी का लिबास जो है वो पहनता है। और इसी तरह से पौलुस ने पुरानी चीजों को नए बनने का जिक्र किया, पुरानी इंसानियत को उतार कर नई पहनने का जिक्र किया, ताकि हम एक नए न्यू बॉर्न बेबी की तरह, नवजात बच्चे की तरह एक नई पैदाइश का तजुर्बा रखते हुए एक और ख्वाहिश को अपनी जिंदगी में लाएं। ईमानदारों के लिए जिस्मानी ख्वाहिशें नहीं, बल्कि एक और ख्वाहिश बड़ी जरूरी है, जिसका जिक्र पतरस ने यहाँ पर किया। पतरस से कहा है, नवजात बच्चों की तरह खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो। बच्चा, छोटा बच्चा क्या चाहता है? छोटे बच्चे को पालने का तजुर्बा जो लोग यहाँ पर रखते हैं, खातीन या बड़े भी, मर्द भी, छोटे बच्चे को, न्यू बॉर्न बेबी को जिन्होंने पाला है, जिनकी परवरिश की है, वो जानते हैं तो किस चीज़ का मुश्ताक है। उसको दूध चाहिए, उसको खुराक चाहिए, और सिर्फ उसी के लिए रोता है। जब भी वो रोता है उसको दूध पिलाएं, वो खामोश हो जाता है, उसको इत्मीनान, पीस मिल जाता है। इसी तरह से ईमानदार की जिंदगी का इत्मीनान सिर्फ और सिर्फ खालिस रूहानी दूध, जिसे मुफस्सिर कहते हैं कि ये खुदा के कलाम की तरफ इशारा है, कि ये खुदा के कलाम की ख्वाहिश है, खुदा के कलाम की तड़प है। जो यहाँ पर मुश्ताक का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, ये पुराने अहदनामे में 2 मज़ामीर में भी इस्तेमाल किया गया है, और ये शदीद ख्वाहिश को बयान करता है कि कोई शख्स किसी बात के लिए शदीद ख्वाहिश रखे। जिस तरह नवजात बच्चा, जिस तरह न्यू बॉर्न दूध की शदीद ख्वाहिश रखता है और उसके लिए रोता है, इसी तरह से ईमानदार अपनी जिंदगी में तमाम दुनवी और जिस्मानी ख्वाहिशों के बरअक्स अपनी जिंदगी में खुदा के कलाम को सबसे ज्यादा तरजीह दें। सबसे शदीद ख्वाहिश खुदा के कलाम को सीखने की हो। बड़ा ही खूबसूरत लगता है जब बहुत से लोग अपने फारग औकात में खुदा के कलाम को सुनने के लिए वक्त गुजारते हैं। वीडियोस पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर खुदा के कलाम को सुनने के लिए वक्त गुजारना खालिस रूहानी दूध का मुश्ताक होने की तरह है। ज़बूर 42 और उसकी हम पहली आयत को देखते हैं, वो बड़ी ही अहम आयत है और ख्वाहिश की शिद्दत को बयान करती है। ज़बूर 42 और उसकी पहली आयत में लिखा है, जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही है खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। हम ज़बूर गाते हैं, जिमें हरनी पानी दे, वो ज़बूर है, ज्यों तरहाई त्यों मेरी रूह, इस तरह से अल्फाज है पंजाबी में, ज़हन से निकल गए। ज़बूर 42 की उर्दू में, जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही है खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। यानी इतनी शदीद ख्वाहिश खुदा के लिए, जिस तरह हिरन जो है वो पानी के लिए तरसता है, जिस तरह से कोई भी जानवर पानी की प्यास रेगिस्तान में महसूस करता है, इसी तरह से ईमानदार के लिए खुदा के कलाम की तड़प और ख्वाहिश होनी चाहिए। इसी तरह ज़बूर 119 और उसकी आयत नंबर 174 में लिखा है, ऐ खुदावंद मैं तेरी निजात का मुश्ताक रहा हूँ, आई लॉन्ग फॉर योर साल्वेशन, मैं तेरी निजात का ख्वाहिशमंद हूँ, तड़पता हूँ निजात को हासिल करने के लिए, तुझे देखने के लिए, तुझे पाने के लिए तड़पता हूँ। ये ईमानदार की ख्वाहिश होनी चाहिए। ईमानदार की नई जिंदगी में खुदा के कलाम के लिए इस तरह की तड़प हो कि वो दुनियावी ख्वाहिशों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी खुराक का मुश्ताक हो जो खुदा का कलाम है। खुदा का कलाम उसकी निजात को और मजबूत करने का बायस बनता है। निजात खुदावंद यीशु मसीह के खून से धुल जाने के वसीले से है। निजात में आगे बढ़ने का इंतजाम खुदा के कलाम के वसीले से है।
जब हम खुदा के कलाम को सीखते हैं, खुदा के कलाम को रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ते हैं, खुदा के कलाम में से अपने लिए बरकत हासिल करते हैं, तो ये हमारी निजात को मजबूत बनाता है। हमारी ज़िंदगी में खुदा के कलाम को, खुदा के कलाम के मताले को नज़रअंदाज करना एक अहम खामी है। यहाँ पर बहुत से लोग बैठे हैं, आप अपने दिल से पूछ सकते हैं कि हम खुदा के कलाम के मुश्ताक हैं या खुदा के कलाम को नज़रअंदाज कर। हम इस रूहानी खुराक को, खालिस रूहानी दूध को नज़रअंदाज करते हैं या हम इसके ख्वाहिशमंद हैं। हमें अपने आप से खुद जवाब मिल जाएगा कि हमने इस खुराक को नज़रअंदाज किया है या इसके ख्वाहिशमंद हैं। ईमानदार खुदा के कलाम का ख्वाहिशमंद होता है। हकीकी ईमानदार खुदा के कलाम को सीखने के लिए, खुदा के कलाम को पढ़ने के लिए तड़प रखता है। अगर हमारी जिंदगी में खुदा के कलाम को सीखने के लिए, खुदा के कलाम को पढ़ने के लिए, अपनी नजात को और मजबूत बनाने के लिए, अपनी गवाही को और मजबूत बनाने के लिए, अपनी नई इंसानियत में आगे बढ़ने के लिए, रास्तबाजी के लिबास को लोगों के सामने और खूबसूरती के साथ पेश करने के लिए जो हमने पहना है, जरूरी है कि हमारी जिंदगी में खुदा के कलाम के लिए तड़प। हम अपनी जिंदगी से, अपने दिल से पूछ सकते हैं कि हम किस हद तक इसके मुश्ताक हैं। ज़बूर 42 में ज़बूर नवीस कहता है कि मेरी रूह जिंदा खुदा की प्यासी है। हम में से कौन कौन खुदा के कलाम का प्यासा है? खुदा के कलाम के वसीले से हम खुदा को जानते हैं। खुदा के कलाम के वसीले से हम खुदा की मर्जी को अपनी ज़िंदगी में जानते हैं। इसलिए हम में से हर एक को खालिस रूहानी दूध का मुश्ताक रहने की ज़रूरत, ताकि हम निजात में आगे बढ़ते जाएं। और इसी तरह से पतरस रसूल 4 और 5 आयत में ईमानदारों के लिए जो नए सिरे से पैदा हो चुके हैं, जो नए सिरे से पैदा होकर यीशु के खून से धुलकर निजात का तजर्बा हासिल कर चुके हैं, उन्हें एक नया स्टेटस देता है। नया स्टेटस क्या है? मुकद्दस फिरका बनने का, मुकद्दस लोग बन जाने का, मुकद्दस कौम बन जाने का, जिसकी बुनियाद खुदावंद यीशु मसीह है, जिसके कोने के सिरे का पत्थर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। हमें बतौर ईमानदार इस बात को ज़हन में रखने की जरूरत है कि खुदावंद के लोग जो हैं, जो ईमानदार हैं, जो यीशु पर ईमान रखते हैं, जो निजात याफ्ता हैं, वो अकेले कुछ नहीं है। ईमानदार अकेला कुछ नहीं है। मसीही ईमान हमें अकेला रहने के लिए ईमान में मजबूत नहीं करता। मसीही ईमान हमें एक कम्युनिटी, एक कौम, एक खानदान बनाता है। और मुकद्दस पौलुस रसूल ने इफिसियों के खत में खास तौर पर इस नए स्टेटस का जिक्र किया है। इफिसियों का खत उसका 2 बाब उसकी 20वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक यूं लिखा है, बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हमवतन और खुदा के घराने के हो गए हो। स्टेटस क्या है? अब हम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे। जब कोई शख्स नए लोगों में या नए शहर में, नए मोहल्ले में जाता है, वो दूसरे लोगों के लिए स्ट्रेंज, अननोन होता है। लेकिन खुदावंद के घराने में शामिल हो जाने वाले वो लोग हैं जो यीशु पर ईमान रखते हैं, वो मुकद्दसों के हमवतन हैं। और बाद में पौलुस कहते हैं, और रसूलों और नबियों की नींव पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है, तामीर किए गए हो। उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदावंद में एक पाक मकदस बनता जाता है। तुम भी उसमें बाहम तामीर किए जाते हो, ताकि रूह में खुदा का मकदस मस्कन बनो। अकेला मसीही कुछ नहीं है, अकेली ईंट कुछ नहीं है, लेकिन ईंट जब इमारत में इस्तेमाल होती है तो उसी वक्त उसकी इफादियत नजर आती है। इसी तरह से ईमानदार अकेला कुछ नहीं है। बहुत से मसीही लोग अपने आप को दूसरे मसीही लोगों से अलग थलग रखते हैं, मेल जोल कम रखते हैं, किसी को कमतर समझकर,
किसी को कमजोर समझकर, किसी को कम पढ़ा लिखा समझकर, किसी को गरीब समझकर, किसी को जाहिल समझकर, बेवकूफ समझकर, किसी को छोटा समझकर हम अपने आप को दूसरों से अलग रखते हैं। लेकिन मसीही एक ऐसी इमारत है जिसमें वो मिलकर खुदा का मस्कन बनाते हैं, जिसकी बुनियाद खुद यीशु मसीह है। और यीशु मसीह के वसीले से खुदा ने हमें एक खानदान बना दिया है, एक इमारत बना दिया है, रूहानी घर बना दिया है, जो कि बढ़ता जाता है, बहम तामीर होता जाता है। हमारे इर्द गिर्द लाहौर में बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स बनी हैं जो हमारे देखते देखते मंजिल ब मंजिल ऊपर बढ़ती गई हैं। ऊंची ऊंची मंजिलों में हम देखते हैं पहले एक मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल बढ़ती जाती है और एक बड़ा बड़ा टावर हमारे सामने आ जाता है कुछ अरसे के बाद। मसीही ईमानदार भी इसी तरह से हैं। मसीही ईमानदार इकट्ठे मिलकर एक रूहानी घर बनाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, जो नए सिरे से पैदा हुए लोग हैं वो अकेले कुछ नहीं, वो एक इमारत की तरह है जिसकी बुनियाद यीशु है। यीशु ने जोड़ा और एक खानदान बनाया है। इसलिए हमें एक दूसरे के साथ इकट्ठे मिलकर रूहानी तौर पर आगे बढ़ने की जरूरत है। पहले बाब की 22वीं आयत में भी पतरस ने इसी तरह से बाहमी मोहब्बत का जिक्र किया था। और मैंने अर्ज किया कि ये दूसरा बाब जो है ये पहले बाब से ही आगे बढ़ाई हुई बातें हैं कि पहले बाब में पतरस रसूल ने इख्तिताम में नई पैदाइश यीशु के वसीले से और यीशु के वसीले से मखरसी और भाइयों के दरमियान मोहब्बत की तालीम दी है। और इसी तरह से दूसरे बाब में अपनी जिंदगी में से भाइयों के लिए हसद, नफरत, बदगोई, खामियां खत्म करके एक खानदान की तरह इकट्ठे रहने की तालीम दी है। यानी दूसरा बाब जो है उसका आगाज हमें एक नई जिंदगी में अपने साथियों के साथ, अपने ईमानदार बहनों और भाइयों के साथ इकट्ठे रहने, उनके साथ मोहब्बत करने और आपस में रूहानी तौर पर ताल्लुक में जुड़े रहने की तालीम देता है, ताकि हम रूहानी घर बन जाएं और काहिनों के फिरके की तरह जिम्मेदारी सरअंजाम दे सकें। जब हम इकट्ठे होते हैं, एक खानदान की तरह होते हैं, एक घर की तरह होते हैं, तो काहिनों का काम सरअंजाम दे सकते हैं। काहिनों की दो जिम्मेदारियां हमें पुराने अहदनामे में नजर आती हैं। काहिन खुद खुदा के पास आता है, काहिन दूसरों को खुदा के पास लाने का जिम्मेदार है। लेकिन मसीह में ये स्टेटस हर एक ईमानदार को मिला है कि हर एक ईमानदार खुद खुदा के पास आ जाए। हर एक ईमानदार ना सिर्फ खुद खुदा के पास आ जाए, दूसरों को भी खुदा के पास ला सके। काहिन के लिए लातीनी जुबान में एक लफ्ज है पॉन्टिफेक्स, जिसका मतलब है ब्रिज बिल्डर, पुल बनाने वाला, पुल तामीर करने वाला। और पॉन्टिफेक्स का मतलब यह है कि वो शख्स जो खुदा और इंसान के दरमियान पुल बन जाए। और ईमानदार काहिनों का रुतबा रखते हैं, ऐसे काहिन जो खुद खुदा के पास आते हैं और दूसरे लोगों को भी खुदा के पास लाने की जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, हम में से हर एक को अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत कि हम खुद खुदा के पास आ सकते हैं या खुदा के पास आने की ख्वाहिश रखते हैं, मुश्ताक है, और हमें दूसरे लोगों को भी खुदा के पास लाने की जरूरत। काहिन दूसरों की इमा पर, दूसरों के बेहाफ पर कुर्बानियां खुदा के पास लाया करते हैं। लेकिन ईमानदार जब खुदा के पास आ जाते हैं, दूसरों को खुदा के पास ले आते हैं, तो वो अपने आप को कुर्बानी के तौर पर खुदा के हुजूर पेश करते हैं। और रोमियो के खत में पौलुस रसूल ने ऐसी कुर्बानी का जिक्र किया जो जिंदा, नेक और खुदा को पसंदीदा है। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने की नजर करो। रोमियो का खत उसका 12वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, भाइयों मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ, खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ
کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کی نظر کرو جو زندہ، نیک اور خدا کو پسندیدہ ہے۔ یہ پالوس رسول نے تعلیم دی کہ خدا کے لوگ کس طرح کے کاہن بن سکتے ہیں، خود خدا کے پاس آنے والے، دوسروں کو خدا کے پاس لانے والے، اور اپنے بدن خدا کے حضور قربانی کے لیے دینے والے بن جائیں۔ اس لیے ہمارے کلیسیاؤں میں، پاکستانی کلیسیا میں ایک بڑا مسئلہ یونٹی کا ہے، جس کی وجہ سے ہماری گواہی بھی مؤثر نہیں ہے۔ لیکن پطرس رسول نے اس حوالے میں ایمانداروں کو ہر طرح کی بدخواہی، فریب، ریاکاری، بدگوئی اور حسد کو دور کر کے خدا کے کلام کی طرف دھیان کرنے، خدا کے کلام کے مشتاق ہونے اور آپس میں ایک روحانی عمارت بننے کی تعلیم دی ہے، تاکہ ہم اکٹھے مل کر لوگوں کو یسوع کے پاس لا سکیں۔ میرے عزیزو، آج جب ہم خداوند کی میز پر آنے والے ہیں، ہمیں سے ہر ایک کو اپنی زندگی میں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کن چیزوں کے مشتاق ہیں، دنوی چیزوں کے یا خالص روحانی دودھ کے۔ اگر ہماری زندگی میں یہ خامی ہے تو آج خداوند کے پاس آ کر خداوند سے دعا مانگیں کہ خداوند ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم آج سے خدا کے کلام کے مشتاق ہو جائیں، خدا کے کلام کو سیکھنا، خدا کے کلام کو پڑھنا شروع کر دیں۔ ہمارے میں سے ہر ایک کے جو یہاں پر والدین بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو بچے جوان بیٹھے اور بیٹھے ہیں یہاں پر بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک اہم چیلنج ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کن چیزوں کا مشتاق بناتے ہیں، وہ کن چیزوں کی خواہش رکھتے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو خدا کے کلام کی خواہش کرنے والا بنانا ہے، خود بھی خدا کے کلام کی خواہش رکھنے والا بنانا ہے، دوسروں سے محبت کرنے والا، دوسرے مسیحی لوگوں کے ساتھ رہنے والا بنانا ہے، اپنے بچوں کو دوسرے مسیحی لوگوں کے ساتھ ملنے کے لیے تیار کریں تاکہ ہم ایک خاندان کی حیثیت سے رہ سکیں، دوسروں سے نفرت کرنا نہ سکھائیں بلکہ دوسروں کے ساتھ پیار اور محبت کرنا سکھائیں۔ کاہن کی خدمت سر انجام دیں، کاہن کی خدمت سر انجام دیتے ہوئے یہ ہم دونوں ذمہ داریاں پوری کر سکتے ہیں کہ ہم خود بھی خدا کے پاس آ سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی خدا کے پاس لا سکتے ہیں۔ آئیں دعا کے لیے اپنے سر کو جھکائیں۔ خدا قدوس، ہمارے زندہ ابدی خدا، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، دنیوی خواہشیں، جسمانی خواہشیں ہماری زندگی کا حصہ ہے، ہم جسمانی خواہشوں کے ہاتھوں بک جاتے ہیں۔ خداوند تو ہماری مدد کر، ہمیں مضبوط کر تاکہ ہم جسمانی خواہشوں کے مشتاق نہ ہوں بلکہ تیرے کلام کے مشتاق ہو جائیں۔ خداوند تو ہماری مدد کر، جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، جتنے آن لائن ہمارے ساتھ شامل ہیں، خداوند تو ہمارے ساتھ، تاکہ ہم اپنے ارد گرد رہنے والے مسیحی بہنوں اور بھائیوں سے محبت کر سکیں، روحانی طور پر ایک عمارت بن سکیں جس کی بنیاد یسوع نے خداوند ہمیں جوڑا ہے، اکٹھا کیا، ایک گھرانہ بنایا، ایک رشتے میں اکٹھا کیا ہے۔ خداوند توفیق دے کے یہ رشتہ قائم رہے، یہ تعلق، یہ یونٹی اور بڑھے تاکہ ہم دوسرے لوگوں کے لیے گواہی کا باعث ہوں اور دوسرے لوگوں کو مسیح کے پاس لانے کا باعث ہوں۔ یسوع کے نام سے آمین۔ خداوند کی تعریف میں ہم گیت نمبر 344 گائیں گے، 344، خداوند اپنے لوگوں میں آیا ہے۔ گیت نمبر 344، گیت نمبر 344، خداوند اپنے لوگوں میں آیا ہے۔ Now
सरों को झुकाएं और इन हदियाजात को खुदा की हजूरी में पेश करें। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हम पर फजल किया, हमें ज़िंदगी दी, सेहत और तंदुरुस्ती दी ताकि हम तेरी हजूरी में आ सकें। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, हमने तेरी हमदसना के गीत गाए, तेरे कलाम को सुना, तुझसे मांगा है। और खुदावंद उन तमाम लोगों के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं जो ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हो सके हैं, सभी पर तेरी बरकत मांगते हैं। इन हदियाजात के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तेरी दी हुई बरकत में से तेरे लोगों ने तुझे लौटाया है। इसे कबूल कर और तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सारी कलीसिया रूहानी तौर पर और दुनियावी तौर पर बहुत सी बरकतें पाए। खुदावंद अपने लोगों को खुशहाली बख्श दे। खानदानी मसाइल यीशु के नाम से जाते रहें, मुआशी मसाइल यीशु के नाम से जाते रहें। तेरे लोग बरकत पाएँ, खुशियाँ पाएँ, खुशहाली पाएँ, ईमान में मजबूत और कायम रहें। बेरोजगारी यीशु के नाम से जाती रहे। जो लोग कर्ज के बंधन में फंसे हैं यीशु के नाम से रहाई पाएँ। खुदावंद अपने लोगों को बरकत दे। जो लोग आज किसी मुश्किल परेशानी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, तेरे बेटे यीशु के नाम से उनकी मुश्किलात खत्म हो जाएं, उनकी परेशानियाँ खत्म हो जाएं। खुदावंद तू मदद कर। और खुदावंद आज यहाँ से तेरे लोग तसल्ली, इत्मीनान और ईमान की मजबूती और बरकतों के साथ वापस लौटे। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। तशरीफ रखें। से बाहर आ जाए मेरे साथ। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात को फरमाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा ये मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो, इस प्याले में से पीते हो, तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कि नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उस प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सज़ा पाएगा। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की मेज़ पर आने के लिए खुद को तैयार करें। ऐ रहीम खुदावंद, अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाह बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते। हम तो इस लायक नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं वो चुने, लेकिन तू वो खुदावंद जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे अजीज़ बेटे खुदावंद यीशु मसीह का गोश्त इस वार से खाएँ और उसका खून इस वजह से पिएँ कि हमारे गुनाह मुदा बदन उसके बदन से पाक साफ किए जाएँ और हमारी रूहें उसके नहायत बेशकीमत खून से धोई जाएँ और वो हम में और हम उसमें हमेशा बसें। खुदावंद हम दिलो जान से ये भी अर्ज़ करते हैं कि तो अपनी पिदराना शफ़क़त से हाल में बाला पर हमारी हम्द व शुक्र की इस कुर्बानी को मंजूर कर। और तेरी मेहनत करते हैं कि तेरे बेटे यीशु मसीह के सवाब और मौत के सवाब और उसके खून पर ईमान रखने के वसीले से हम तेरी कुल कलीसिया अपने गुनाहों की माफ़ी और उसकी अजियत के बाकी सब फ़ायदे हासिल कर सकें। ऐ नहायत रहीम बाप, हम आजिज़ी से तेरी मेहनत करते हैं कि तू अपने पाक और ज़िंदगी बख्श रूह को हम पर और अपनी इन बख्शिशों पर नाज़िल फरमा कि ये रोटी जो हम तोड़ते और मसीह के बदन की शराकत हो, और ये प्याला जिसका हम बरकत चाहते हैं उसके खून की शराकत हो, और बख्श के हम सब जो इस पाक शराकत में शामिल होने वाले हैं तेरे फजल और आसमानी बरकत से बिल्कुल मामूल होकर तेरे बेटे अपने मुनजी यीशु मसीह के बदन में एक हो जाएं। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने जिस रात को खवाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। खाने के बाद उसने प्याला भी लिया और कहा ये मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी में यही किया करो। मैं भी खुदा का खादम होने की हैसियत से आप सबको
खुदावन की मेज पर आने की दावत देता हूँ। पानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। जो कुछ हासिल किया मेरी आदत नहीं, तूने सब कुछ दिया मेरी ताकत नहीं। जो कुछ हासिल किया मेरी आदत नहीं, तूने सब कुछ दिया मेरी ताकत नहीं। तेरा मैं करूँ, तेरा मैं करूँ, रूह से भर दे मुझे, मेरे पावे खुदा, रूह से भर दे मुझे। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतर कर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। यीशु ने कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा।
यीशु ने कहा जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज़ निकाल न दूंगा। क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो ना दूं, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखकर उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। यीशु ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। यीशु ने कहा जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ या उसका खून ना पियो तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाकर मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन पर जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज़ और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज़ है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है, मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा मैं बाप के सबब से जिंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाए वो अब तक जिंदा रहेगा। आमीन। के लिए अपने सरों को झुकाएं और शुक्रगुजारी की दुआ करें। ऐ काबिल मुतलक रब्बी जिंदा खुदा, हम दिलो जान से तेरा शुक्र करते हैं कि तू मेहर करके हमें जो इन पाक राजों में दुरुस्ती से शरीक हुए हैं अपने बेटे हमारे मुनज्जी यीशु मसीह के नहायत बेश कीमत बदन और खून की रूहानी खुराक खिलाता है, और इस बात से अपना फजल करम हम पर साबित करता है। और ये भी कि हम तेरे बेटे के रूहानी बदन में जो सब ईमानदारों की मुबारक जमात है दर हकीकत झटे हुए अज़ा है, और तेरे अजीज़ बेटे की बेबहा मौत और अजियत के सवाब के सबब उम्मीद की राह से तेरी अपनी बादशाही के वारस भी है।
اے آسمانی باپ ہم نہایت فروختی سے عرض کرتے ہیں کہ اپنے فضل سے ہماری ایسی مدد کر کہ ہم اس پاک رفاقت میں قائم رہیں اور جو نیک اعمال تو نے پیشتر سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیے ہیں ان سب کو کیا کریں اسی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے جس کی تیرے اور روح القدس کے ساتھ تمام عزت و تعظیم عبدالآباد ہوتی ہے عالم بالا پر خدا کا جلال اور زمین پر صلح اور بنی آدم سے رضامندی ہو اے خداوند خدا آسمانی بادشاہ خدا قادر مطلق باپ ہم تیری حمد کرتے تجھے مبارک کہتے ہیں تیری پرستش کرتے اور تیرا جلال ظاہر کرتے ہیں تیرے بڑے جلال کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں اے خداوند اکلوتے بیٹے یسوع مسیح اے خداوند خدا خدا کے بندے باپ کے بیٹے تجھے جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے ہم پر رحم کر تجھے جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے ہم پر رحم کر تجھے جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے ہماری دعا قبول کر تجھے خدا باپ کے دہنے بیٹھا ہے ہم پر رحم کر کیونکہ تو ہی قدوس ہے تو ہی خداوند ہے اے مسیح تو ہی روح القدس کے ساتھ خدا باپ کے جلال میں آلہ ہے آمین آئے ہم سب کھڑے ہو کر خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہوں اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج میں بخش دے جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور معاف کر ہمیں آزمائش میں نہ لاؤ بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں آمین خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھے اور خادمت خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت تم پر ہو اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے آمین